Hello students, today in this lecture we will discuss the propagation of errors, that is how to calculate the measured values in the different mathematical operations. Today I will discuss the propagation of errors in addition and subtraction. So let us start with the propagation of errors with addition, okay? Now let us suppose first we are having a physical quantity, okay, and that physical quantity has two different measured values and we have to calculate their sum. Let A plus minus delta A be the first measured value, okay, and B plus minus delta B be the second measured value of the given physical quantity. Okay, sirs? Since remember, measured values, they are always written in this format. Okay? In this format, since this A or B, they are the true values, plus minus delta A or plus minus delta B, they are the absolute errors. Got it, sirs? Now, let's suppose, sirs, A plus minus delta A and B plus minus delta B are the different measured values of the given physical quantity and we have to do the calculation. We have to calculate their sum. Okay? We have to just add these two measured values. Now let us see. Now I am giving you the derivation and you will get the clear result. We have to use that clear result while solving the numericals. Okay? Now so I am giving you the derivation. Let us suppose say x plus minus delta x plus minus delta x be the measured value of the sum of the given measured values. Okay, sirs? Note it down this. Yes, sir, it's done. Now, we can say that this x is the true value of the sum, and to calculate the true value, we have to just add up the true values of the different measured values of the different measured values of the physical quantity. Okay? Now this x, it will be say A plus B. Remember, we are provided with two different measured values, say A plus minus delta A and B plus minus delta B. Out of these two measured values, A and B, they were the true values, and our aim is to calculate the sum of the measured values. Okay, sirs? And I have told you that x plus minus delta x is the measured value of the sum. So since x, it will be the true value of the sum. Now, how can you calculate the true value of the sum? To calculate the true value of the sum, you have to consider the true values of the given measured values. Got it, sirs? Now, let us call this as the equation number first.
Okay, and when we are considering the measured values, then say x plus minus delta x, it should be written as a plus minus delta a plus b plus minus delta b. Got it, sirs? The measured value of the sum, it should be equal to the measured values, the sum of the given measured values. Now we have to just rewrite this. I can write this as say a plus b. I am writing out the true values first of all. Then plus minus is made common. Say delta a plus delta. Got it, since? Okay. Now since this x plus delta x is equals to this much. Now we can use this equation number first. Okay. We can write out the value of a plus b from the equation number first. Let us first of all call this as the equation number second. Now using the equation first, the equation second can be rewritten as, I am rewriting out that equation number second, that is I will just place the value of a plus b from the equation number first. This a plus b was x, so instead of this a plus b we will place the value of x. Say x plus minus a delta x, it is written as, say x plus minus is made common, say delta a plus delta b. Got it, sirs? Means in place of this a plus b we are just writing out its value, and its value is x. Got it? Okay, clear over here? Now this x plus minus delta x, it was say x plus minus delta a plus delta b. Fine. Now sirs, we can cancel out this x. What we are left with? We are left with plus minus of delta x, it is written as plus minus of delta a plus delta b. Got it, sirs? It is the equation number third, and this equation number third is the clear result. Okay, sirs? Now what we conclude from this result, or say the equation number third, look carefully, sirs. In this equation number third, plus minus delta x, what was it? It was the absolute error in the sum. Okay, the absolute error in the sum, it is equal to the algebraic sum of the absolute errors in the provided measured values. बेटा ये सिंपल सी बात समझ आ गई? नोट करें आप इसको. Done? Okay. So friends, from the derivation we concluded that the maximum possible absolute error in the sum of the given measured values is equal to the algebraic sum of the absolute errors in the given
measured values. Got it students? तो स्टूडेंट्स, अगर एग्जामिनर बेटा आपसे डेरिवेशन कराने को पूछता है तो आपको बोलेगा कि यू हैव टू प्रूव द स्टेटमेंट विच आई हैड रिटन ऑन द बोर्ड. द स्टेटमेंट विच आई हैड रिटन ऑन द बोर्ड, it is the result of the derivation. Okay students, note it down. Yes students, done. Now remember one thing students, that the propagation of errors in addition and subtraction, they are same. I'm saying that whenever you are doing the numericals, then students, the result for addition and subtraction is same. So students, instead of doing the derivation for subtraction, I am giving you the direct result. Okay, clear? बस बेटा ये याद रखना है कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में जब एरर कैलकुलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, एडिशन के टाइम पे सम बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन के टाइम पर डिफरेंस बोलेंगे. तो स्टूडेंट्स बेटा सम में एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है या डिफरेंस में एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है, दोनों ही कंडीशंस में गिवन मेजर्ड वैल्यूज के जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं आपने उनको ऐड करना है. बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? सो स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन के केस में बेटा रिजल्ट डिफाइन कर रहा हूं. सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट डिफाइन कर रहा हूं, द मैक्सिमम पॉसिबल absolute error in the difference of the given measured values is equal to the algebraic sum of the absolute errors in the given measured values. Got it, sirs? तो सर सब्ट्रैक्शन में सम की जगह डिफरेंस वर्ड आ जाएगा बस, बाकी कोई चेंजेस नहीं है. जब डेरिवेशन आप करेंगे तो बुक से आप इसे गो थ्रू करें, जब डेरिवेशन करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, बस ये डिफरेंस आएगा. ओके स्टूडेंट्स, ये जो प्रोपेगेशन ऑफ एरर है ये एक न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट सेक्शन है. एग्जाम्स में जब भी आएगा न्यूमेरिकल्स आएंगे, डेरिवेशन अगर आती है तो एडिशन की आएगी या फिर मल्टीप्लिकेशन की आएगी. ठीक है सर, तो एडिशन का मैंने दे दिया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्शन का डेरिवेशन बुक से गो थ्रू करें. अगर कोई डाउट है तो मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा. मुश्किल से 2 स्टेप का डेरिवेशन है, इजीली हो जाएगा, तो इसलिए सेंस उसको मैंने बोर्ड पर नहीं किया. तो मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेशन मैं आपके लिए करूंगा. अब जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट सेम होगा, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी रिजल्ट सेम होने वाला है. गॉट इट स्टूडेंट्स? तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स एक जनरल अप्रोच जो हम न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करने वाले हैं एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में. एडिशन में से a प्लस माइनस डेल्टा a, it will be the first measured value.
b plus minus delta b, it will be the second measured value, and x plus minus delta x, it will be the measured value of sum. अब ध्यान से सुनिए, न्यूमेरिकल्स में you will be provided with the given measured values. Either you have to add those measured values or you will be asked to subtract the measured values. या तो आपको एडिशन करने को बोलेगा या सब्ट्रैक्शन करने को बोला जाएगा. बात समझ आ गई? अब बड़े ध्यान से सुनिए. डाटा में पेपर पर कैसे लिखेंगे? डाटा में पहले गिवन मेजर्ड वैल्यूज को इस फॉर्मेट में लिखना है. ठीक है सर? सम के लिए कोई भी सिंबल यूज करें, मैं अभी न्यूमेरिकल्स जब आपके साथ डिस्कस करूंगा तो करके दिखाऊंगा. सम के लिए कोई भी मेजर्ड वैल्यू का सिंबल यूज करें, जैसे मैंने x प्लस माइनस डेल्टा एक्स यूज किया. ठीक है? अब सिर्फ दो स्टेप में काम करना है. ध्यान से देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू. देखिए कैसे. Since x is the true value, so this x it will be written as, बेटा ट्रू वैल्यूज को कंसीडर करना है. ठीक है? जब ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप तो आपने ट्रू वैल्यूज को कंसीडर करना है. अब देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन था एडिशन, ऐड करना है. सो x is written as a plus b. तो ये काम क्लियर हो गया. x मिल गया. ठीक है? ये जो मेजर वैल्यू ऑफ द सम है हमें ये कैलकुलेट करना था. ठीक है? अब बेटा देखिए डेरिवेशन से हमने सीखा डेरिवेशन का जो रिजल्ट है. अब हमें डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है. तो कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इट इज रिटन एज प्लस माइनस, कॉमन रखेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. ये सिंपल सा काम करना है. गॉट इट? एक्स कैलकुलेट हो गया, डेल्टा एक्स कैलकुलेट हो गया, दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो गई. गॉट इट सर? इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो आपका आंसर होगा. समझ आ गई बात? ओके. सब्ट्रैक्शन में देखिए, again when you want to do the subtraction, then again you will be provided with two different measured values. Let us suppose say a plus minus delta a be the first measured value, b plus minus delta b be the second measured value, and x plus minus delta x be the measured value of difference. Measured value of difference. तो सर फिर से मेजर्ड वैल्यू ऑफ डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है. मतलब x कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस डेल्टा x भी कैलकुलेट करना है. वैल्यूज आएंगी इस फॉर्मेट में लिखना है. ठीक है? तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. लेट अस सपोज दिस x इज द ट्रू वैल्यू. ओके? एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू एंड द सेकंड मेजर्ड वैल्यू. तो जब डिफरेंस कैलकुलेट करने को बोला जाएगा, ऑलवेज बेटा हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है. याद रखेंगे, हमेशा हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है? जब ट्रू वैल्यू की बात होगी, सिर्फ ट्रू वैल्यू में. सो x इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द डिफरेंस, इट विल बी से a माइनस b. ठीक है? तो बेटा ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ट्रू वैल्यूज को कंसीडर करके मैथमेटिकल ऑपरेशन कैरी आउट करना है. ठीक है? एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में दोनों में ध्यान से देख लें. एडिशन करने को बोला था तो ट्रू वैल्यूज को कंसीडर किया, ऐड कर दिया. सब्ट्रैक्शन करने को बोला है तो ट्रू वैल्यूज को कंसीडर किया, सब्ट्रैक्शन कर दिया. ठीक है? बस सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान रखना है, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है. करेक्ट? ओके. नाउ प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज रिटन एज, बेटा सब्ट्रैक्शन में एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसा कि डेरिवेशन के रिजल्ट में समझाया था मैंने आपको. बेटा एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों ही केसेस में एब्सोल्यूट एरर का प्रोपेगेशन कैसे होता है? एब्सोल्यूट एरर को ऐड किया जाता है. ठीक है? सो प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इट विल बी रिटन एज प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. बेटा ये बात समझ आ गई? ओके. propagation of errors में always you will be provided with at least two different measured values. Got it, sons? Okay? And you will be asked to do the addition or the subtraction. ठीक है? अभी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा तो सिर्फ आपको कैसे पता लगेगा कि आपको एडिशन करना था
ये आपको सब्ट्रैक्शन करना था। ठीक है, तो नोट करें आप इसको। Yes, so it's done. अब बेटा न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ठीक है, डाटा मैं बोर्ड पर लिख दूंगा। डाटा मैं जब बोर्ड पे लिखूंगा तो ब्रीफ में लिखूंगा, ठीक है, लेकिन डाटा लिखने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूं। ओके, द टू डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हैविंग द वैल्यूज, चलिए मैं बोर्ड पर लिखता हूं। बड़े ध्यान से नोट कर लें सर क्वेश्चन को। द रेजिस्टेंसेस से R1 प्लस माइनस डेल्टा R1, जैसा कि बताया था मैंने आपको, मेजर्ड वैल्यूज को आपने सिंबॉलिकली भी इसी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, सिंस देयर आर टू डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, द वैल्यू फॉर द फर्स्ट रेजिस्टेंस से 10 प्लस माइनस 0.1 ओम एंड द सेकेंड रेजिस्टेंस से R2 प्लस माइनस डेल्टा R2, it is just the measured value. Okay, it is 5 plus minus 0.2 ohm are connected in series with each other. Calculate their equivalent resistance in the series combination. तो स्टूडेंट्स 10th में आपने बेटा रेजिस्टेंसेस की कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया था। आपको मालूम है कि सीरीज में जब रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट निकालना होता है तो स्टूडेंट्स गिवन रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स में वो आपको सीधा वर्ड्स में लिख के नहीं देगा कि ये टू डू द एडिशन और ये टू डू द सब्ट्रैक्शन। आपको न्यूमेरिकल में खुद डिसाइड करना होगा कि आपने एडिशन करना है या आपने सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। बात समझ आ गई? ओके, नाउ स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में कैसे करेंगे बेटा? पहले फर्स्ट मेजर वैल्यू को लिखेंगे। स्टूडेंट्स R1 प्लस माइनस डेल्टा R1, बेटा सिंबल को R1 नहीं लिखना है, सिर्फ R1 मत लिखना, इस फॉर्मेट में लिखना। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू के फॉर्मेट में लिखी जाता है। इट इज 10 प्लस माइनस 0.1 ओम एंड R2 प्लस माइनस डेल्टा R2, it is written as say 5 plus minus say 0.2 ohm. Got it? Now sirs, words में लिखना। Let us suppose say R plus minus delta R is the equivalent resistance in series combination.
अब बड़े ध्यान से देखिए बेटा, R1 ट्रू वैल्यू कितना है 10, कंपेयर करना है। R2 ट्रू वैल्यू कितना है 5। R प्लस माइनस डेल्टा R मेजर्ड वैल्यू ऑफ द सम बोला है, तो R ट्रू वैल्यू ऑफ द सम हो गया। तो पहले स्टेप में आपने R कैलकुलेट करना है, ठीक है सर। जो फॉर्मेट अभी मैंने आपको दिया था, तो सिर्फ 2 स्टेप में काम करना है। पहले स्टेप में ट्रू वैल्यू को सॉल्व करेंगे, सेकेंड स्टेप में आप एब्सोल्यूट एरर को सॉल्व करेंगे। सो R इज रिटन एज R1 प्लस R2। बात समझ आ गई? ओके, क्लियर हो गया? सो सिंस वी कैन से that this R is written as 10 plus 5 which is equals to 15 ohm। बेटा बात समझ आ गई? तो हमें R का वैल्यू मिल गया। अब हमें डेल्टा R निकालना है, कैसे निकालेंगे? प्लस माइनस डेल्टा R इज रिटन एज, प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस डेल्टा R प्लस माइनस लगाएंगे, गिवन मेजर्ड वैल्यूज में जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनको ऐड करेंगे। पहले सिंबॉलिकली लिख लेते हैं। मेजर्ड वैल्यू सिंबॉलिकली हमने लिखा था, इट इज से डेल्टा R1 प्लस से डेल्टा R2। गॉट इट? कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्लस माइनस से डेल्टा R इज रिटन एज, प्लस माइनस इज मेड कॉमन। ध्यान से देखिए, डेल्टा R1 का वैल्यू इट इज 0.1, डेल्टा R2 का वैल्यू इट इज 0.2, सो इट इज 0.1 प्लस 0.2। गॉट इट सर? एंड इट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.3 ओम। बेटा ये बात समझ आ गई? ध्यान से देख लें। ओके, नोट करें इसको। नोट करिए। यस मिस्टर, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें अपना आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखेंगे आप? देखिए, R मिल गया, डेल्टा R भी मिल गया, तो आंसर ऐसे लिखना है, R प्लस माइनस डेल्टा R इज रिटन एज, पहले R का वैल्यू लिखें, इट इज 15 प्लस माइनस 0.3 ओम। गॉट इट सर? बेटा ये डेसिमल्स हैं, ओके। तो स्विस आंसर ऐसे लिखना है। बात समझ आ गई? पता लगा एडिशन कैसे करना है? बेटा एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना है, बस ये छोटी सी बात याद रखनी है। और जब ट्रू वैल्यू निकालना है तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला गया है, चाहे तो ऐड करने को बोलेगा, सब्ट्रैक्ट करने को बोलेगा, मल्टीप्लाई करने को बोला जा सकता है, डिवाइड करने को बोला जा सकता है, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला जाए करने के लिए ट्रू वैल्यूज को कैलकुलेट करते टाइम आपने सिर्फ ट्रू वैल्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है? डन? नोट कर ले, आप नोट कर ले। ओके, so let's next question. Next question. Okay. The lengths of two rods are L1 plus minus delta L1, say 10 plus minus 0.5
0.01 कर लेते हैं। And L2 plus minus delta L2 5 plus minus 0.02 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। The lengths of the two rods are, the measured value of the first rod is 10 plus minus 0.01 and the measured value of the length of the second rod is 5 plus minus 0.02 meter. What do you have to do? You have to calculate the combined length of the two rods. Got it, students? You have to calculate the combined length of the two rods. तो बेटा combined length अगर निकालना है तो it means you have to just do the addition of the lengths of the two rods. Okay? अब ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन में पहले डाटा लिखना है। L1 plus minus से डेल्टा L1 it was 10 plus minus 0.01 meter and L2 plus minus delta L2 is written as 5 plus minus 0.02 meter. ओके, अब बेटा रिजल्ट में रिजल्ट को डिफाइन तो करना होगा। रिजल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? Let us suppose say L plus minus delta L be the combined length of two rods. Okay? तो ध्यान से देखिए बेटा, 10 ट्रू वैल्यू है, 10 ट्रू वैल्यू है of the length of the first rod, 5 true value है of the length of the second rod, ठीक है। यहां पर सिंबॉलिकली हमने L को true value बोला है of the combined length of the two rods. Clear? मतलब L is simply the true value of the sum of the lengths of the two rods. तो पहले स्टेप में स्टूडेंट्स हमें true value सॉल्व करना, L को सॉल्व करना, तो L is written as L1 plus L2. Fine. So this L is written as the true values, they are 10 plus say 5. Unit is meter. L is written as say 15 meter. तो बेटा L मिल गया 15 मीटर. Got it? अब बेटा एरर को सॉल्व करना है. Plus minus delta L is written as plus minus of delta L1 plus delta L2. Got it? तो एब्सोल्यूट एरर सम में कैलकुलेट कैसे होता है? एब्सोल्यूट एरर सम में गिवन मेजर्ड वैल्यूज में एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना होता है। सो प्लस माइनस से डेल्टा एल इज रिटन एज प्लस माइनस द वैल्यू फॉर डेल्टा L1 इट इज 0.01 प्लस 0.02 यूनिट लिखेंगे मीटर, then plus minus say delta L is written as plus minus say plus minus say 0.03 meter. Got it, students? तो since L मिल गया, delta L मिल गया, now what you have to do? We have to just write out the answer. तो आंसर में कैसे लिखेंगे यार? We will say L plus minus delta L is written as say 15 plus minus 0.03 meter. Got it? This will be the answer. बेटा बात समझ आ गई? नोट कर लें आप इसको। नोट करिए।
Done? Now, sirs, the next question. The initial and final temperatures of the liquid are, say, T1 plus minus delta T1 10 plus minus 0.2 degrees Celsius and T2 plus minus delta T2 say 15 plus minus 0.1 degrees Celsius. The initial and final temperatures of the liquid are T1 plus minus delta T1 equals to 10 plus minus 0.2 degrees Celsius and T2 plus minus delta T2 equals to 15 plus minus 0.1 degrees Celsius. Calculate the rise in temperature of the liquid. You have to calculate the rise in temperature of the liquid. अब बड़े ध्यान से सुनिए बेटा, राइज कैसे निकालते हैं? राइज कैसे निकालेंगे या फॉल कैसे निकालेंगे? स्टूडेंट्स, राइज निकालना है, जैसे इस न्यूमेरिकल में तो हमें राइज निकालना है, राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. तो राइज कैसे निकाला जाता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. बात समझ आ गई? ओके ओके. तो पहले डाटा लिखेंगे. T1 plus minus say delta T1 is written as 10 plus minus 0.2 degrees Celsius. T2 plus minus delta T2 is written as say 15 plus minus say 0.1 degrees Celsius. ओके. अब बेटा वर्ड्स में लिख देते हैं. वर्ड्स में मैं तो लिख रहा हूं, अगर आपने लिखना है तो लिख दें, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, चलेगा. वैसे मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि बेटा जो मेजर्ड वैल्यू आपके आंसर का है उसे पहले हमेशा वर्ड्स में डिफाइन कर दें. ठीक है. लेट T plus minus delta T be the rise in temperature of the liquid. Got it? Okay. तो फिर से पहले ट्रू वैल्यू सॉल्व करना है रिजल्ट का. सो द T it will be equals to, we have to calculate the rise in temperature. So rise is final temperature minus the initial temperature. The final temperature, the initial temperature, the true value of the final temperature, the initial value of the temperature. Got it, sirs? It is the true value of the final temperature. This one 10 is the true value of the initial temperature. So this T is written as T2 minus a T1. कैसे लिखना है बेटा? T2 minus T1. फिर से बता रहा हूं आपको, 2 स्टेप का काम है. पहले स्टेप में आपने ट्रू वैल्यू सॉल्व करना है. ट्रू वैल्यू सॉल्व करने के लिए जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने को बोला गया है वो करना है. ठीक है. So since T2 minus T1, so this T is written as, it is 15 minus say 10 डिग्री सेल्सियस. यूनिट हमेशा लगाना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. So T is written as say 5 डिग्री सेल्सियस. ओके सर. तो ट्रू वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया. अब एरर कैलकुलेट करते हैं.
बेटा ध्यान से देखिए, मेजर्ड वैल्यू में प्लस माइनस डेल्टा टी को सिंबॉलिकली हमने एब्सोल्यूट एरर बोला। प्लस माइनस डेल्टा टी इज रिटन एज प्लस माइनस। देखिए अब की बारी सब्ट्रैक्शन करने की बारी आई है, तो सब्ट्रैक्शन में एरर में मैं एरर की बात कर रहा हूं, ट्रू वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। तो बेटा एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एब्सोल्यूट एरर को आपने हमेशा ऐड करना है, ठीक है। सो प्लस माइनस डेल्टा टी इज रिटन एज प्लस माइनस ऑफ से डेल्टा टी वन प्लस डेल्टा टी टू। गॉट इट? ध्यान से देखिए, वी हैव टू कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर। राइज निकाला जाता है सब्ट्रैक्शन करके, ठीक है। एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरर को ऐड करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स प्लस माइनस से डेल्टा टी इज रिटन एज प्लस माइनस 0.2 0.1 डिग्री सेल्सियस। बात समझ आ गई? सो स्टूडेंट्स प्लस माइनस ऑफ डेल्टा टी इज रिटन एज प्लस माइनस ऑफ 0.3 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? ओके। तो स्टूडेंट्स हमें टी मिल गया, हमें डेल्टा टी का वैल्यू मिल गया। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू राइट आउट द आंसर। वी हैव टू राइट आउट द आंसर। आंसर कैसे लिखेंगे? अब ध्यान से देखिए आंसर कैसे लिखना है। से टी प्लस माइनस डेल्टा टी इज रिटन एज से 5 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट सर? दिस विल बी द आंसर। बेटा ये आंसर है। T plus minus delta T is 5 plus minus 0.3 degree Celsius. Note it down, sirs. Yes, so it's done. Okay. Now, sirs, the next question. The disk is heated, due to which it undergoes expansion. The area of the disk increases from, say, A1 plus minus delta A1 20 plus minus 0.02 say centimeter square to, say, A2 plus minus delta A2 25 plus minus 0.01 centimeter square. Calculate the increase
in area of the disk. Calculate the increase in area of the disk. तो बेटा इंक्रीज इन एरिया कैसे निकालेंगे? फिर से फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया करके निकालेंगे, ठीक है? So students, in the data A1 plus minus delta A1 is written as 20 plus minus 0.02. The unit is centimeter square. A2 plus minus delta A2 is written as say 25 plus minus 0.01 centimeter square. Okay, now words में लिखें. Let us suppose say A plus minus delta A be the increase in area of disk. Okay, तो फिर से स्टूडेंट्स पहले ट्रू वैल्यू, thus A it will be the true value of the result and plus minus delta A it will be the absolute error in the result. So first of all we are going to calculate the true value for the area. So this A it is written as say A2 minus A1. What do you have to do? You have to calculate the increase. Increase is always final area minus the initial area. So it will be A2 minus A1. Okay? So this A is written as say 25 minus say 20. The unit was centimeter square. Okay? And similarly, plus minus delta A, it is written as plus minus, as I told you, बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड करना है, ठीक है? Plus minus delta A is written as plus minus of delta A1 plus delta A2. Plus minus of delta A is written as plus minus delta A1 as it is 0.02 plus 0.01. The unit is centimeter square. On solving it, let us do the calculations. This A is written as 25 minus 20. It is say 5 centimeter square, and plus minus of delta A is written as plus minus of 0.03 centimeter square. Got it? Okay, the true value is 5 and the absolute error is plus minus 0.03. Now at the last you have to just write out the answer. The answer is A plus minus delta A is written as 5 plus minus 0.03 centimeter square. This will be the answer. Okay? Got it? Note it down. Done? Now sirs, beta the propagation of errors is the most simplest part of our physics. बेटा बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे बता रहा हूं, स्टेप्स बता रहा हूं मैं आपको, जिन स्टेप्स में जो करने को बोला जा रहा है बस उतना ही करते जाइए. बहुत सिंपल है फिजिक्स. सिर्फ आपने रेगुलर बेसिस पे नोट्स बनाने हैं अपने. ये जो व्हाइट बोर्ड पे मैं जो भी कर रहा हूं, आप बेटा जब वीडियोस देखें तो हमेशा रजिस्टर और पेन के साथ बैठें. वीडियो जब आप देख रहे हैं तो सिंस जब पूरा व्हाइट बोर्ड का एक फ्रेम हो जाता है तो मैं रुक जाता हूं. तो सिंस आपको नोट करना है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे वीडियो को रोक लें. आप रोकने के बाद नोट कर लें, ठीक है? ओके, जब वो नोट हो जाए उसके बाद फिर प्ले कर लें. फिर प्ले करने के बाद में सिंस फिर एक फ्रेम पूरा हो जाएगा, मैं फिर रुक जाऊंगा, फिर आपको बोलूंगा कि नोट इट डाउन, फिर से नोट करें. तो आपने क्या करना है, आपने नोट्स रेगुलर बेसिस पर मेंटेन करने हैं, बनाने हैं. ओके, और उनको रेगुलर बेसिस पर, जैसे आज मैंने वीडियो लॉन्च किया,
जब भी आप देखेंगे, जब भी से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आज लॉन्च कर रहा हूं तो आप 4 दिन बाद देखें, ऐसा मत करें। क्योंकि स्टूडेंट्स अब आपके स्कूल खुलने वाले हैं और स्कूल जब खुलेंगे तो आपके स्कूल वाले क्या करेंगे, स्टूडेंट्स मैं तो फिर भी इतने न्यूमेरिकल्स कर रहा हूं, वहां पर देखेंगे आप न्यूमेरिकल्स ना के बराबर होंगे। टॉपिक्स भी बोलेंगे कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, वैसे वैसे हो जाएगा, बुक से कर लेना। तो ये चलेगा आपके स्कूल्स में, मतलब कोर्स को बड़ी स्पीड से भगाएंगे वो। क्योंकि स्टूडेंट्स लॉकडाउन में ऑलरेडी 4 महीने निकल जाएंगे। बेटा देखिए, अप्रैल निकल चुका है, मई निकल चुका है, जून निकलने वाला हो रहा है, और जुलाई में तो कहते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट आएगा, और ये भी नहीं पता अभी तो कब आएगा, और फिर कब आपके स्कूल में सेशन स्टार्ट होंगे। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 4 महीने निकल जाएंगे। तो उन्हें पूरे साल का कोर्स करना है। जब वो पूरे साल का कोर्स करेंगे तो स्टूडेंट्स कोर्स को तो भगाएंगे। तो इसलिए आप रेगुलर बेसिस पर रहें, ठीक है। ये दिमाग से निकाल दें कि चलिए लॉकडाउन है, एंजॉय कर रहे हैं, करते जाएंगे, ऐसे मत करें। तो रेगुलर बेसिस पे काम करें, और स्टूडेंट्स आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उन्हें यूज करें। क्लियर? और जब आप ये नोट्स बनाएं, तो जैसे आज वीडियो लॉन्च हुआ है, तो कोशिश करिए बाय द नेक्स्ट डे वीडियो लॉन्च होने के नेक्स्ट डे तक आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाए। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद स्टूडेंट्स मुझे उन नोट्स का, जैसे रजिस्टर पे आप जब नोट्स बना रहे हैं, आपने क्या करना है, लेक्चर नंबर डालना है, डेट डालना है, और मोबाइल में बेटा कैम स्कैनर अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो इंस्टॉल कर लें कैम स्कैनर। ओके, हर एक पेज का एक बड़ा क्लियर फोटो खींचे, कैम स्कैनर से स्कैन कर लें और मुझे भेज दें व्हाट्सएप पर। ठीक है, बात समझ आ गई? तो जिससे कि मुझे ये पता लगे कि आप रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जब आप भेजें तो अपना नाम जरूर लिख दें, नाम एक बार ही नाम लिख दें और अपने स्कूल का नाम लिख दें, ठीक है। और एक बार ही मुझे फोटो जरूर भेजें, जिससे कि मैं एक बार ही देख लूं आपने क्या नोट्स बनाए, कैसे नोट्स बनाए, और उनकी आपने लर्निंग करनी है। गॉट इट स्टूडेंट्स? बात समझ आ गई? नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रोपेगेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडवांस में बता रहा हूं, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर का प्रोपेगेशन सेम है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी एब्सोल्यूट एरर का प्रोपेगेशन सेम होने वाला है। ठीक है? ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे।